आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कल्प का अंत होता है। एक कल्प के अंत के हो पश्चात भगवान विष्णु, भगवान नारायण क्षीर सागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं, शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हैं। पद पे उनकी लक्ष्मी होती है, आंख अधमूंदी सी होती है। नारायण का एक हाथ जो होता है उनके शीश पर होता है, एक हाथ नीचे होता है। नारायण इज कॉन्टेम्पलेटिंग, भावी कल्प कैसा होगा उसके विषय में नारायण चिंता करते हैं। इनोवेटिव आइडियाज कैसा होगा, किस प्रकार से भावी कल्प का निर्माण होगा उसकी चिंता करते हैं। जैसे ही he conceptualizes how the भावी कल्प would be from his नाभि पद्म, जिस पद्म के विषय में भी यहां बताया गया, उस पद्म पर बैठ करके भावी कल्प के जिनके पास स्किल होता है वो ब्रह्मा उपजते हैं। The Brahma is skilled to produce the next Brahmand, next universe, and you know who provides the resource? जब उनके पास इनोवेशन होता है तो वो महालक्ष्मी की तरफ देख के बोलते हैं, महालक्ष्मी मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, आप मुझे ग्रांट कर दीजिए, आपके ग्रांट से ये ब्रह्मांड बनेगा। देयर इज नो जेंडर इन वैकुंठ, वैकुंठ में कोई नर नहीं, कोई नारायण नहीं, वही नारायण नारायणी है, वही शिव शिवी है, वही पार्वती है, वही शिव है। इसलिए यह धारणा गलत है कि नारी नर के पैरों के पास बैठी है। तात्पर्य है कि जहां आइडिया है, जहां इनोवेशन है, जहां विद्या है, जहां शिक्षा है, रिसोर्स के पास कोई अन्य उपाय नहीं है। रिसोर्स की अपनी बाहें अपने आप ही खुल जाती है, मां लक्ष्मी तथास्तु कह ही देती है। बंधुगण, जहां तक भारत के विषय में कहा गया, अभी मेरे भाई नालंदा के विषय में बोल रहे थे। जब नालंदा को बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था, 3 महीनों तक नालंदा जला था, 3 महीनों तक। वो ज्ञान का खजाना अभी भी अमिट है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आग तब जली थी वो आग आज बुझी है, वो आग आज बुझी है। भारत के आबादी के 40% बच्चे और युवा हैं, 40% बच्चे और युवा हैं। यह एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। दिस इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया, बट इट्स अ बिग चैलेंज एज वेल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। शिक्षा, कौशल और रोजगार, जिस प्रकार से उसके लिए 1.48 लाख करोड़ यह प्रस्तावित किया गया है इस बजट में रखा गया है। I commend this government. I applaud this government. I applaud Narendra Modi ji and Dharmendra Pradhan ji, Nirmala Sitharaman ji for the work that they have been doing in this sector and the proposals that have been put forth in this budget. What is the most important reason behind putting most of the effort on skilling, on entrepreneurship, on innovation? The most important reason is that India wants to go towards Vikasit Bharat. We want to create a talent basket. We want to be a skill hub. We want to be a solution provider to the whole globe. And that's the reason as to why such importance has been given to skilling, employment generation, as well as way forward. Flagship programs like Samagra Shiksha, PM Shri, PM Poshan, they have received increased allotment in this budget, and let me commend the government that this budget allocation for the financial year 2024-25 of rupees 73,498 crore is the highest ever for the Department of School Education and Literacy. Manya Sabhapati Mahoday, let me present to you a comparative data, a comparative chart, which would show as to what was the situation before Modi ji came to power and how the situation of education has changed thereafter. You would be astonished to learn that the total budget for school and higher education, that is the Ministry of Education, for 2013-2014
was 79,451 crores only, compared to 1.21 lakh crore this budget year, this fiscal year. So the growth in the budget in the last 10 years has been 52.4%, a whooping 52.4%. Similarly, in the school education, the growth in budget has been 39.5%, and higher education, the allotment has increased by, I repeat, 78%. I emphasize 78% increment in the allotment on higher education. Sir, today a lot has been talked about reservation. My good friend from this side and my friends from that side, they've exchanged arguments about reservation, आरक्षण. मुझे तो कहते हुए तकलीफ होती है, जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो लोग आज जवाब दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं, आप बताइए क्या ये सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे एससी और हमारे एसटी बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया, और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। आज मैं सुन रहा था, यहां कोई पेपर लीक के विषय में कह रहा था। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है, और आप हमारी तरफ देख रहे हो। नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले, और मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को। बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर, आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था, इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज बरीड अस, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बट लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे, आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं, आपके पाप के चिट्ठे मतलब आपके 2006 में कहां ये सब लीक हुए थे। देखिए 2006 में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश पत्र परीक्षा पेपर लीक AIEEE, 2008 में पीएमटी प्री मेडिकल पेपर लीक, 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र SSC एग्जाम पेपर लीक, 2016 में कर्नाटका PUC परीक्षा पेपर लीक, सिद्धरामैया की सरकार थी, 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 2011 में हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC पेपर लीक, आपकी सरकार थी। आप जरा सोच के देखिए, आपके गिरेबान के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक भरा हुआ है। मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए 5 फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है, जिस बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, जिसमें 10 साल के जेल का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रखा गया है। सभापति महोदय, कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, 34 वर्ष बीत गए, यहां युवक सांसद बैठे, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, युवा सांसद है यहां कि कितने युवा सांसद है, देखिए इनसे पूछिए आप NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 वर्ष क्यों लगे। गर्व के साथ कहूंगा 2014 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सीना ठोक करके कहा था, हम सरकार में आएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे, और हमने वो करके दिखाया है। ये मोदी की गारंटी है। नई खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।